is there, I need to be planned for this month, this year, next year, or after 5 years. So I must have a plan for short term, very short term, medium term, and long term. Do you agree with me, ma'am? Yes, sir. Very true. So when I am planning for short term, that is operational plannings. When I am planning for midterm, that is an expected outcome of this batch, right? When I am planning for 5 years from now, that means I am planning for the growth of the institution, right? Okay, ma'am? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Do you have these plannings in your institution? Do you ever discuss and plan these things, noting down somewhere, if this is your short-term plan, this Yes, is sir. your We have. mid-term plan, this is your long-term plan? We have a short time and a long time, sir, academic year. So 1 year program and a short Forget time about 6 months. academic year. I'm Yes, talking sir. about Huh. the planning for short-term, planning for academic year, planning for the 5 years from now. Yeah. Precisely in different areas. I'm just giving you an area, right? Yes, sir. One, admission. What is your plan? That how will you increase up to which number? What is your target to get admission applications in 2022? How much application you wanted? As of now, in 2020, you received 100 applications from the students against 63, right, madam? Yes, sir. So in True. Yes. 2022, how many applications you wanted in 2022 admission? Yeah. Obviously more, sir. Now, where is it planned? Is it written somewhere? In this year, Yeah. we had received 100 applications. In 2022, we will receive 500 applications. Okay. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. True. Is it written somewhere? Yes or no? Yeah, we have to. Very It true. is not planned. Yes. If you do not know where to reach, how will you plan how to reach? Yeah. If I had a plan that next year I will go for a family vacation in a seashore, then only I can plan how much money I need, what are the places I can go, what are the conveniences and opportunities to visit a seashore. If the plan is not there, am I going to do research on all those? No. We need plan. So, madam, you are sitting in Mysore. If I Yeah. do not have a plan to visit Mysore, right, Yeah. will I try to have a good relation with you so that when I visit Mysore, I can get an accommodation in your institution? Yeah. If I had a plan, Definitely. if I had a plan, I will every day I will talk with you. Yes. I will exchange my phone numbers. Yeah. True. I will create a good rapport with you. So that you can invite me, come and stay in my institute. Yes, sir. So if you do Definitely. not have a plan, strategy formulated for your institution, what you wanted in a particular area, that is admission application number. I'm just giving an example. Okay. That what is your target for admission application number in 2021, in 2022 admission, 2023 admission. If you do not have a strategy, a goal, how will you plan the strategy to reach there?
Yes. Sir. So for everybody, please write areas. Like I had said, one number of application for the admission. Please write different areas, one area by everybody on the chat box. Please write everybody one area where institute should plan. One is number of application for admission. What are the others? Right. Everybody please write on the chat box. Yes, sir. Faculty excellence. What more? Please write fast. Okay, sir. Right. What are the strategies, strategic area you want to implement? Number of placement. What more? We have three answers: number of placement, teaching excellence, number of application. What more? सर थर्ड कौन सा? मैडम चैट बॉक्स में आ रहा है, आपके पास है. You can see in the chat box. What more? Let me help you out. Location and convenience, the condition of classroom, branding of institution, better discipline, better infrastructure, better workshop, these machines, the new trades, additional seats in every trade, additional classroom. What more? ओके सर, बहुत अच्छा. What more? Discipline. What more? डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी. Great challenge, availability of latest machine, good environment. What more? पंक्चुअलिटी. Implementation of new age courses. What more? Transportation. What more? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा. So you can list n number of things, right? मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है, जो लोग प्रिंसिपल हैं या जो इंचार्ज हैं, आप आराम से आज शाम को बैठना और एक लिस्ट डाउन करना कि क्या क्या आपको अपने इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या आप उम्मीद करते हैं. When you list down things, then convert it in short term, long term and strategic needs. When these time frame is decided, then plan what is to be done to achieve there. मेरी बातें यहां तक पहुंच रही हैं आपको? yes or no? यस सर. यस सर. जब आपको पता होगा कि आपको अपने इंस्टीट्यूशन में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो अभी 25 आते हैं वो 200 चाहिए नेक्स्ट ईयर, तब आप आपस में बात करोगे कि 200 होगा कैसे ये. Then you will search कि एक्स इंस्टीट्यूशन में 500 एप्लीकेशंस आती है, क्यों आता है उसके यहाँ 500? What they people are doing? आप देखोगे आप ही के पास दूसरे इंस्टीट्यूशन में 500 एप्लीकेशंस आती है, आपके यहाँ 100 आती है, क्यों भाई? Lack of knowledge. No. Lack of planning is there. Lack of interest is there, ma'am. ओके सर. ओके. आपकी वो तैयारियां नहीं है. राजेश सर has written upgrade yourself. ये बहुत बड़ा सा सेंटेंस उन्होंने लिख दिया. ज्योति मैम, ओके सर. आपका लास्ट एजुकेशन क्या था? कॉलेज में अंतिम पढ़ाई क्या थी आपकी? मेरा सीटीआई सर. सीटीआई कब किया था आपने मैडम? मैंने सर आई थिंक 93 94. क्या ट्रेड है मैडम आपका? मेरी सीटीआई कंप्लीट सर 93 में शायद हुई थी. हाँ जी. अभी आप जो पढ़ाती हैं क्या ट्रेड पढ़ाती हैं? अभी तो मैं पढ़ाती नहीं, मेरा स्ट्रीम में हेयर एंड स्किन केयर था सर. ठीक है, जब आप पढ़ाती थी क्या पढ़ाती थी?
हेयर एंड स्किन केयर सर। हेयर एंड स्किन केयर, हाँ जी, स्किन केयर राइट कॉस्मेटोलॉजी। हाँ जी, हाँ जी। राइट। कॉस्मेट स्किन केयर के अंदर में जो दुनिया बदली है, ये पक्का है ना? बिल्कुल सर, बहुत बदली है, बहुत ज्यादा, बहुत। आपने कब 15 दिन खुद पढ़ा, मैं रिपीट कर रहा हूं मैडम, हाँ जी आपने सर। कब 15 दिन खुद पढ़ा स्किन केयर के इन चेंजेस को पढ़ा? टाइम टू जैसे टाइम एक सर मैं स्टूडेंट पढ़ता है, नहीं मैम, कभी कुछ पढ़ लेना अलग है, एज ए स्टूडेंट कैसे पढ़ता है? स्टूडेंट आई। तो 2 4 10 दिन लगातार पढ़ता है ना। हाँ जी, हाँ जी। आपने मैं कब पढ़ा? सॉरी सर, मैं प्रैक्टिकल करने नो ना, जैसे फॉरगेट अबाउट दिस। पढ़ा पार्लर कब, में जाती किताबें हूँ। कब खोली? किताबें कब खोली? कभी नहीं खोली सर, अभी थोड़ा टाइम हो गया। मैडम बहुत फॉर टाइम। बेनिफिट ऑफ एवरीबडी, मैडम मैं क्या करता हूं, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ जी सर। ठीक है? हाँ मैं जी, महीने का एक दिन, मतलब 12 घंटे पूरे महीने में ठीक है। मैं कुछ नहीं करता, केवल किताबें निकाल कर पढ़ता हूं। ओके सर। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाँ जी सर। हर महीने का एक दिन, साल के 12 दिन हाँ आपको जी। अपने ट्रेड को, अपने जो आप जानते हैं, जो पढ़ते पढ़ाते हैं, उनकी किताबें निकाल कर पढ़नी पड़ेंगी। और पढ़ना बिल्कुल क्या है मैडम? जो एकेडमिक्स में नई एंट्रीज हुई है ना, मान लो मैंने एमटेक किया, ठीक है, हाँ जी सर। 2010 में एमटेक किया, ओके सर। प्रभात जी ने 2018 में किया, हाँ जी। 2010 से 2021 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस कॉलेजेस में बदल गए होंगे। ओके सर। तो मुझे क्या करना है, अभी का लेटेस्ट। लेटेस्ट कॉलेज का सिलेबस खोलना है हाँ जी, हाँ और जी। वो पढ़ना है जो मैंने नहीं पढ़ा है, जो पढ़ती नए हूँ सर। आज हुआ। पढ़ती हूँ सर, ये तो मैं पढ़ती हूँ नहीं जरूर। पढ़ते हैं मैडम, कोई नहीं पढ़ता है। सर मैं पढ़ती हूँ। मैडम आप बता दें, कॉस्मेटोलॉजी में नया हाँ। एंट्री 2020 में क्या हुआ? नया एंट्री सर, हाँ, वो ब्यूटी नए ब्यूटी सिलेबस में, नए नए सिलेबस, सिलेबस में क्या एंट्री हुआ? ब्यूटी स्टूडियो। ब्यूटी स्टूडियो में निरमा इंस्टीट्यूट में क्या ऐड हुआ मैडम बताइए? हाँ जी, ब्यूटी स्टूडियो में निरमा इंस्टीट्यूट में क्या ऐड हुआ? निरमा इंस्टीट्यूट, सर्फ में। अच्छा ठीक है सर, सर्फ निरमा वाले। निरमा इंस्टीट्यूट, या आ जाइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मेटोलॉजी में क्या हुआ, या आ जाइए, देखिए डॉक्टर स्नेहा कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ जी। मैडम मैडम, मैडम मैडम ब्यूटी स्टूडियो मैडम पे हम लोग इसमें चार्जेस इन नहीं जमा करें, हुआ। मैडम हम लोग इसमें इन नहीं करें। नहीं। मेरा सिंपल रिक्वेस्ट है, आप अपने आप से सच बोलें, दुनिया बदल रही है और हमें किताबों को पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल सर, लेटेस्ट अपडेट होने के लिए। बिल्कुल सर। We cannot presume that I know everything. No, I don't know. सर बेसिक्स वही है जो हमने पढ़ा नहीं है है ना। बेसिक मैडम, वो बेसिक्स खत्म बेसिक। हुए। You are not there as a teacher to teach basics. न्यू न्यू Basics are प्रोडक्ट available लॉन्च to the होते हैं। student. मैडम बेसिक्स स्टूडेंट को अवेलेबल है, बिल्कुल सर। मुझे तो वो देना है जो स्टूडेंट को अवेलेबल नहीं है। ओके सर, ओके। तो वो कैसे देंगे जब मुझे वो ही अपडेट नहीं है? सर अपडेट है, उनको मोटिवेट भी करना है, फैकल्टी को भी सर। मैडम नहीं है, फैकल्टी तब राइट होगा जब मैं एज ए प्रिंसिपल राइट होऊंगा। ओके मेरी सर। समस्या ये है कि मेरे कि यहाँ मैं अपडेट 10 नहीं हूँ। सब्जेक्ट के फैकल्टी है और मुझे 10 सब्जेक्ट आना चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस फैकल्टी को एक ही आना चाहिए। नहीं, वैसे ऑलराउंडर होना चाहिए। मैडम अभी मैं आपसे कॉस्मेटोलॉजी पर बात कर सकता हूं 2 घंटे, नया सिलेबस पर, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। थैंक यू सर। लेकिन आप जैसे लोग मिल जाते हैं तो उनसे अगर बात मैं करना चाहता हूं तो मुझे पढ़ के आना पड़ेगा। नो सर, आप अभी डॉक्टर कैसे स्नेहा करते बैठी हैं? हैं, मुझे अगर लिथोट्रिप्सी पर बात करना है तो मुझे कोल्ड लिथोट्रिप्सी पर बात करना पड़ेगा मैडम से। क्या टेक्निक्स इसके अंदर है, क्या एडवांटेज है?
बिल्कुल अदरवाइज ये मुझे भगा देंगे अपने क्लास से। नहीं सर, नहीं। वो मुझे नहीं सुनेंगे मैडम। अगर मैं इनके टॉपिक पर इनके इतना भी नहीं जानता हूंगा ना, तो मेरा बॉसेस मानेंगे ही नहीं है। If I want to discuss with Dr. Sneha, I need to have understanding of latest things. Then only I can discuss with her. मेरी बात क्लियर है? ओके सर, बिल्कुल क्लियर है सर। देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव इस पूरे टॉपिक को लेने का था दो। पहली, आप एक पिन पॉइंट करें अपने इंस्टीट्यूट्स में कि नेक्स्ट 1 महीने में, नेक्स्ट 6 महीने में, नेक्स्ट 1 साल में, नेक्स्ट 2 साल में, नेक्स्ट 5 साल में क्या चेंजेस है, क्या क्या चेंज चाहते हैं आप 50 ऑब्जेक्टिव लो अपने इंस्टीट्यूट का। एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूट में सफाई चाहते हैं, बिल्कुल सर। राइट? सफाई से क्या मतलब है मैडम आपका? हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सर। क्या मतलब है आपका? हाइजीन मतलब क्या? हाउ डू यू फील दैट दिस इज बेस्ट एंड दिस इज ओके एंड दिस इज वर्स्ट? बच्चे खुद मैं खुद करूंगी, बच्चे भी करेंगे। नहीं मैडम, मैं अब सवाल दूसरा मैं फिर से पूछ रहा हूँ। हाँ जी आपके सर, इंस्टीट्यूट में सफाई है, बिल्कुल राइट? सर, कोई कचरा कहीं नहीं दिखता है, बिल्कुल उसको आप नेक्स्ट लेवल ऑफ सफाई कहाँ ले जाएंगे? सफाई कहाँ तक लेके जाएंगे? कोई लेवल होगा ना। ए लेवल पर आप हैं, उसको इंप्रूव करेंगे अगली बार। बिल्कुल सर। तो बी का सफाई लेवल क्या है? गार्डनिंग, क्लीनलीनेस का बी लेवल क्या है? डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, लोग मारपीट नहीं करते हैं। बट व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिसिप्लिन? बिल्कुल सर। पंक्चुअल है, व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ पंक्चुअलिटी? चलो मैं एग्जांपल कर देता हूं। आपके यहाँ टीचर्स पंक्चुअल हैं मैडम। ओके सर, 10 बजे का क्लास 10 बजे शुरू हो जाता है, बिल्कुल सर। लेकिन टीचर के 10 बजे के क्लास में टीचर को 10 बजे जाना चाहिए क्या? मेंटली उसको अपने क्लास में कब जाना चाहिए? 10 बजे जाना चाहिए। फिजिकली, मेंटली कब जाना चाहिए? मेंटली तो जाना ही चाहिए, ऑल कब टाइम। जाना चाहिए मैडम? 10 बजे। 15 मिनट। 10 बजे तो फिजिकली गया, मेंटली कब गया? डॉक्टर स्नेहा कब जाएगा मेंटली? 15 मिनट पहले। तो मेरे हिसाब से 1 day prior he has to be prepared himself अब before देखो, on दो Monday. आंसर है, 15 मिनट और 1 दिन। तो फर्स्ट स्टेज इज 15 मिनट। ओके सर, आपने देखा अभी टीचर आपके क्लासरूम में 10 बजे के क्लास में 10:10 पर जाते हैं। तो आपका ओके नेक्स्ट सर। स्टेज है ये टीचर 10 बजे क्लास में 10 बजे जाएं, 10:10 पर न जाएं। ओके अब सर। सारे टीचर 10 बजे जाने लगे। तो ओके आपका सर। नेक्स्ट लेवल है कि ये टीचर 10 बजे के क्लास में 9:45 से बात करना बंद कर दे ओके और सर, दिमाग में क्लास आ जाए उसके। बिल्कुल सर। नेक्स्ट लेवल है वो टीचर 1 दिन पहले जाग जाए कि प्लानिंग, कल मेरा क्लास है, हम आज Planning. रात को तैयार होते हैं कल आपको पढ़ाने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैडम मुझे आज 3 सेशन लेना था, मैं कल रात 10 बजे से 12:30 बजे तक आपके सेशंस के साथ था। मुझे आपको पढ़ाने के लिए 2 घंटे पढ़ाने के लिए मैं रात को 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ के आया। ओ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ के आएंगे। आपको अपना लेवल ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर मी इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। अगर मुझे आज आपको नहीं पढ़ाना हो तो मैं स्ट्रैटेजिक प्रोसेसेस को नहीं पढ़ूंगा। तो मुझे चूंकि आपको पढ़ाना था इसलिए कल रात मैंने पढ़ा और पढ़ के देखा कि बड़े वाले इंस्टीट्यूशन आईएम्स आईआईटीज क्या कर रहे हैं इसके अंदर, यूजीसी एआईसीटी क्या कर रही है इसके अंदर। तो अगर मुझे क्लासरूम में आना है तो मैं पहले तैयार हुआ। मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग है कि टीचर्स आपके क्लासरूम में टाइम पर आए। ये टाइम का मतलब क्या? 10 बज के ही पहुंच जाएं,
15 मिनट पहले क्लास में चले जाएं दिमाग से, एक दिन पहले क्लास में चले जाएं दिमाग से, क्या करें? सर एक दिन पहले प्लानिंग। मैडम आपका टीचर गया है नहीं गया आपको कहां पता है? उसके लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आपको कहां पता है मैडम? आपको पता है कि वो कब गया? यस। नहीं पता मैम। उसका क्लास शुरू होता है 10 बजे, आप देखेंगी वो स्टाफ रूम में 4 लोगों से बात कर रहा है, 10 बजे तक आपके रूम में मीटिंग कर रहा है वो। यस। उसने आपको 9:30 में नहीं कहा कि मैडम मेरा 10 बजे से क्लास है, मुझे प्रिपेयर करना है, मैं जा रहा हूं। ओके सर। या आपने उसको नहीं कहा कि साहब आपका, माथुर साहब आपका 10 बजे क्लास है, आप जाइए प्रिपेयर कीजिए, मीटिंग बाद में करते हैं। हाँ जी सर। आपने नहीं कहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी बात क्लियर है यहां तक? ओके सर। So we need to understand the entire objective of these decision planning. Then we need plan in the various time scale: immediate planning, short term planning, very short term planning, mid term planning, semester planning, yearly planning, academic planning. We need to do all those things. और एक बार वो प्लान करेंगे वेरियस पैरामीटर पर, then you can create your institution little better every day. ज्योति मैम, हाँ जी सर। आपको आज इंस्टीट्यूट जाना है, राइट? ओके सर। सुबह कितने बजे पहुंचती हैं आप? मैं कोशिश मेरी होती है आधा घंटा पहले पहुंचूंगी। कितने बजे पहुंचती हैं? कितने बजे पहुंचती हैं नॉर्मली? जी पंक्चुअल टाइम पे। नहीं, कितने बजे पहुंचती हैं इंस्टीट्यूट आप? कभी आधा घंटा पहले, कभी नहीं, समय बोलिए, टाइम टाइम कितने बजे? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कितने बजे पहुंचती हैं? 9 बजे सर, 9 बजे। अच्छा, 9 बजे आपको इंस्टीट्यूट पहुंचना होता है, तो घर से आप कितना देर पहले निकलती हैं? प्रिपेयर ऑफ माइंड 8 o'clock, 1 hour। जब आपको 8 बजे निकलना होता है घर से, तो सुबह जागती कितनी देर पहले हैं? और आज जब आप जो कपड़ा पहनकर आएंगी, उस कपड़े को कब प्रिपेयर करती हैं? प्रिपेयर होते हैं मेरे। नहीं नहीं, आज क्या ड्रेस आप पहनेंगी, उस ड्रेस को कब आप डिसाइड करती हैं? विद इन सेकेंड। मोस्ट ऑफ द टाइम एक रात पहले आदमी सोच लेता है कल मैं ये पहनूंगा। मैं नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम एक रात पहले ही सोच लेता है कल मैं ये पहनने वाला। मेरी सोच चलती नहीं ना सर। चलाना पता है मैडम। अच्छा चलिए दूसरा एग्जांपल, आप पूरी फैमिली के साथ घूमने के लिए मेरे पास दिल्ली आ रही हैं। ओके ठीक है, बॉम्बे आ रही हैं, राइट? ओके, ठीक है सर। और आ रही हैं, वहां पर एक पार्टी है, एक फंक्शन है, उसको अटेंड करने आ रही हैं। ठीक है सर। तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने को? कैसे प्रिपेयर करेंगे? कैसे आप ये सोचेंगे ना कि उस पार्टी में क्या पहनेंगे। ओके सर। उस रात जब वहां रहेंगे तो रात में क्या पहनेंगे? नाइट सूट जैसे होता है। रात में जब आप ट्रैवल करेंगे और रास्ते में ठंड लगेगा तो क्या करेंगे? ओके सर। सुबह जागेंगे, बाथरूम जाएंगे तो ब्रश करने के लिए ब्रश कहाँ से लाएंगे? वेरियस चीजें प्लान करती है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। करती है नहीं करती है? बिल्कुल करते हैं सर। नहीं करते तो फिर उंगली से ब्रश करना पड़ता है। तो फंस जाएगा ना बातों। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर प्लान नहीं करेंगे तो चीजें फंस जाएंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट? हम पूरे जीवन प्लान करते हैं मैडम, हर चीज के लिए। बिल्कुल सर। ये प्लानिंग शॉर्ट लॉन्ग टर्म दोनों करते हैं। बिल्कुल सर। इफ यू आर नॉट प्लानिंग योरसेल्फ, यू आर इन बिग ट्रबल। ओके सर। तो पूरी प्लानिंग आप अपने इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए कब करती हैं? मेरा प्रश्न यह था। आपके पास इन राइटिंग चाहिए, लिखा में, कि मुझे अपने इस 1 साल में इतने चीजों में इंस्टीट्यूट में फर्क करना है।
और ये फर्क हर महीने में, हर बार में ऐसे ऐसे करना है। और जब तक आपके पास वो लिखा नहीं होगा तब तक वो प्लानिंग नहीं बनाएंगे आप उसकी, उसके ऊपर में लोगों से बात नहीं करेंगे कैसे किया जाएगा। वो चिंता नहीं आएगी। मीटिंग चल रही थोड़ी देर बाद, 12 बजे के बाद। प्रभात जी मेरी बात क्लियर है मैंने आपको? ममता को बोला। यस सर, प्रभात जी मेरी बात क्लियर है? यस सर, शुड आई मूव अहेड? हम आगे बढ़े? यस सर। अब देखो, पूरा डिसीजन मेकिंग ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन है आपके सर्कमस्टांसेस और उन ऑब्जेक्टिव्स को ही आप लें जो आप पूरा कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अभी इस साल 100 एप्लीकेशन आया था एडमिशन के लिए, तो अगले साल 200 नहीं आ जाएगा। 20% बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा, वो 200% थोड़ी बढ़ जाएगा। अभी मेरे टीचर 10 बजे के क्लास में 10:10 पर जाते हैं, तो पहले वो 10 बजे तो जाना सीख लें। एक बार वो 10 बजे सब लोग जाने लगेंगे तब अगले महीने कुछ नया प्लान करेंगे। राइट? मेरी बात क्लियर है प्रभात जी? प्रभात जी मेरी बात क्लियर है? यस सर। अब देखो, एक दो चीजें और हैं, क्रिएटिविटी एंड वेरिएबिलिटी। क्रिएटिविटी का मतलब है जब आप डिसीजंस कोई लेते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होना चाहिए, आपका खुद का नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट डिसाइड ऑफ योरसेल्फ। आपके सभी कलीग्स जो इस डिसीजन में जिनको काम करना है वो सब मिलकर बैठ के डिसाइड करेंगे। आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन दे सकते हो, ये 10 चीजें हैं जिसमें से कौन वाला करें, पहला वाला करें, दूसरा वाला करें, तीसरा वाला करें, पहले कौन वाला करें। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस और नो? यस सर। मनोज कुमार, मनोज कुमार, यस सर। सुरेश जी मेहन, मनोज कुमार जी। हाँ जी। सर जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने 10 पॉइंट बनाए कि इस महीने इस 10 में से 10 पर काम करेंगे। सोचा कि 10 चीजें हैं, इस सेमेस्टर में इन 10 चीजों पर काम करेंगे। राइट? आपके यहाँ 20 फैकल्टीज हैं, 10 फैकल्टीज हैं, 25 लोग आपके साथ काम करते हैं। आपके 10 पॉइंट पर 25 की सहमति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आप वो 10 रखते हैं कि इस सेमेस्टर में इस 10 पर काम करेंगे, पहले किस पर करें, तो 25 लोगों की एक पर तो जरूर सहमति होगी, ये वाला किया जा सकता है। ठीक है जी। तो पहला वो वाला बोल देगा ये वाला करो, क्योंकि उसमें से 6 उसको लगता है बकवास है, गलत बोल रहा है, नहीं हो सकता। तो जिसकी उसकी सहमति बन गई ना, वो वाला पहले कर लेते हैं। ठीक है जी। तो 4 की सहमति उसकी बन गई है, तो अगले 4 महीने 2 महीने हम वो 4 करेंगे पहले। ठीक है जी। और एक बार उसका रिजल्ट आ जाएगा ना, तब वो आपकी बातों से सहमत होने लगेगा कि सर तो ठीक ही बोल रहे हैं, ऐसा किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, यू आर राइट सर। देखो क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है ना, उसकी कुर्सी से कुछ और दिखता है। ठीक है जी। और फैकल्टी की कुर्सी से कुछ और दिखता है। बिल्कुल। फैकल्टी की कुर्सी से जो दिखता है वह आदमी वही करना चाहता है, और प्रिंसिपल की कुर्सी से आपको बहुत कुछ दिखता है। बिल्कुल जी। आप जो कराना चाहते हैं वो करेगा नहीं, वो करता नहीं, तो फंस जाएगा बात। बिल्कुल। तो 10 ऑप्शन देते हैं उसको, उसमें से वो जो कर सकता वही करे। तो धीरे धीरे वो आपकी बातों से सहमत होने लगता है।
मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके। किसी के मन में और कोई प्रश्न है? नो सर। देखो, उस पर मैं डेप्थ नहीं जा रहा हूं, डेप्थ जाने का कोई खास ऑब्जेक्टिव नहीं बनता। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछो, एल्स आई विल मूव टू द नेक्स्ट। हम किस डेट में शो दे रहे हैं इसको? चेक तो 6 में चल रहा है, 8-7 में कट रहा है ना। Sir, can you please repeat once? नेटवर्क इशू के नहीं, इससे क्या सर क्या समझ क्या में नहीं रिपीट आया। करना मैडम, फिर से बोलिए। सर आपने ये जो एस्पेक्ट बताया क्रिएटिविटी का। अच्छा, मैं वापस आ रहा हूं। हाँ। देखो क्या होता, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो क्या होता मैडम, बीइंग अ प्रिंसिपल, मैं अपने इंस्टीट्यूशंस को कहीं किसी और हाइट पर ले जाना चाहता हूं। तो मैंने अपने एक डिसीजंस लिया कि आई विल डू दीज थिंग्स इन शॉर्ट रन एंड दीज थिंग्स इन द मीडियम और दीज थिंग्स इन द लॉन्ग रन। अब मैंने ये कहा कि आप 10, 15, 20 वेरियस एस्पेक्ट्स, वेरियस फैक्टर्स ले लो जिसमें आप अपना ग्रोथ, अपने चेंजेस करने चाहते हैं। ठीक है? अब जब आप मीटिंग पे बैठेंगे अपने फैकल्टीज के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ, तो आप उनको ये ना कहो यही करना है, क्योंकि उनकी बाइंग नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपके साथ नहीं देगा। आप उसको ऑप्शन दो, ये 10 चीज करना चाहते हैं, कौन सा पहले करें। डू नॉट आस्क सही कौन गलत। आप 10 ऑप्शन दो, बोलो पहले कौन सा करें, तो सारे लोग किसी एक पर सहमत हो जाएंगे, ये करेंगे। जिन जिन चीजों पर सहमत हो जाए वो वाला कर देते हैं। लेट्स मूव अहेड। देखिए, आपकी गाड़ी चलेगी तो कभी न कभी वो मुंबई पहुंच जाएगी। तो गाड़ी स्टार्ट हो जाए और चल पड़े। आपने डायरेक्शन सेट कर दिया है, इसी 10 डायरेक्शन में चलना है, किसी में चल पड़ो भाई, चलो तो। So you need to flexible, you need to have creative ideas, you need to adjustable among all your plans. You should not fix the priority, it has to be done first. यहां तक क्लियर है? अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टाफ मीटिंग। मनोज सर, मनोज जी। ओके सर। सर आपके यहाँ कितने स्टाफ हैं सर टोटल? मेरे यहाँ 23 आदमी हैं जी। सर जो आप स्टाफ मीटिंग आपके यहाँ होती है, हाँ जी। तो सबसे ज्यादा नाराजगी किस बात पर होती है सर? मीटिंग ना टाइम पर शुरू होता है ना खत्म होता है। स्टाफ के साथ तो सर टीचिंग के लिए होती है कि भी आप प्रॉपर ट्रेनिंग दो नहीं सर, जब मीटिंग होती है तो लोग सबसे ज्यादा नाराज, नाखुश किस बात पर होते हैं? मैं बोल रहा हूं मीटिंग के शुरू होने और मीटिंग के खत्म होने के टाइम पर। 1 घंटा की मीटिंग बुलाई और 3 घंटा चलाया, यस और नो? सर 3 घंटे तो नहीं चलती मीटिंग। नहीं, मेरा सवाल है कि आपने जितनी देर के लिए मीटिंग बुलाया था, जिस समय बुलाया था, उसकी टाइमिंग को लेकर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है। टाइमिंग को लेकर के तो ऑब्जेक्शन ज्यादा नहीं होता है, टॉपिक के ऊपर ज्यादा होता है सर। टॉपिक पर ज्यादा होता है। प्रभात जी, आपका क्या सोचना है? यस सर, टाइम लेकर के भी कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं सर कि 1 घंटे का मीटिंग है, 2 घंटे चल रहे हैं, या 10 बजे से टाइम था मीटिंग का, अभी 1:30 बज गए हैं, अभी तक आए नहीं है लोग। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, मीटिंग का दूसरा प्रॉब्लम होता है, एजेंडा था मीटिंग का कुछ और डिस्कस कुछ और हो रहा है।
तीसरा, मीटिंग के लिए मुझको बुलाया और मेरा ओपिनियन ही नहीं सुनता है, मुझको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता बोलने का। बुद्धदेव जी, जी सर। हेलो। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टाफ मीटिंग? क्या दिक्कत होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग, इट्स अ कॉमन कि आधे घंटे के लिए बुलाया जाए, 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है। और दूसरी बात, हर एक का अपना अपना कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आ जाता है कि उसमें मीटिंग चलते हैं, एक टॉपिक में टॉपिक किसी और मतलब घूम जाते हैं, तो उसमें अलग इश्यू आ जाता है, उसके अंदर में जो मीटिंग का कुछ कनेक्शन नहीं है, उसमें बार बार फिर से खींच के लाना पड़ता है। तीसरा नॉर्मल एक बहुत सिंपल सा फैक्ट है, किसी को चाय पे शुगर ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो उस हिसाब के उसको लेकर के फिर 15 मिनट का एक बहस हो जाता है। बिस्किट किस क्वालिटी का है उसको लेकर के 5 मिनट निकल जाता है। इफेक्टिव मीटिंग कम और बाकी जितने भी रहता है ये ज्यादा। इट्स अ जनरल वे। अच्छा सर, एक मीटिंग इफेक्टिव हो, किसकी जवाबदेही है? मेरा। सर, जब आप कोई मीटिंग कॉल करते हैं तो क्या अपने पास एक चेकलिस्ट, एक कागज पर कहीं लिखते हैं कि व्हाट आई शुड डू एंड व्हाट आई शुड लुक एंड व्हाट आई शुड नॉट डू? नहीं, मैं लिख लेता हूँ, लेकिन उतना कॉम्पैक्ट तरीके से लिख नहीं पाता हूँ सर। ना, मेरा सवाल दूसरा, मैं फिर से रिपीट कर, बीइंग हेड ऑफ द मीटिंग, आपने मीटिंग कॉल किया है, क्या आपके पास किसी कागज पर यह लिखा होता है डू एंड डोंट्स, व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू, व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज? जैसे एक चीज, मीटिंग का समय, आपने 40 मिनट के लिए मीटिंग बुलाया है, राइट? तो ये मीटिंग कितने बजे शुरू होगी? मीटिंग में ये 5 बातें डिस्कस करनी है, मीटिंग में लोगों को चाय भी पिलाना है, मीटिंग में लोगों से ओपिनियन भी लेना है। 10:40 की मीटिंग है, तो 10 बजे क्या होगा, 10:05 पर क्या होगा, 10:18 पर क्या होगा, कहीं लिखा है आपके पास? नहीं सर। अगर आपके पास नहीं लिखा है तो मीटिंग के समय में 10 से 10:40 के बीच में कब क्या होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले लोग? यस सर। या जो प्यून चाय पिला रहा वो? अब देखो, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, ठीक है ना? जी सर। लास्ट संडे को मैं करीब 11 बजे तक कोई प्रेजेंटेशन बना रहा था सुबह से। और प्रेजेंटेशन बनाना इसलिए जरूरी था कि 1 बजे मुझे एक वाइस चांसलर मीट में भाषण देना था, जिसमें 18 वाइस चांसलर थे, ठीक है? यूजीसी एआईसीटी के रीजनल डायरेक्टर्स थे, ओके, ठीक है? मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं सुबह से प्रेजेंटेशन बना रहा था और मैं तब तक नहाया भी नहीं था, ठीक है? मेरी वाइफ ने मुझको ये कहा आकर कि नहा लीजिए, मेड को कपड़ा धोना है, उसको देर हो रहा है। तो मैंने पूछा कि मेरे जीवन के मैं कब क्या करूंगा, इसका डायरेक्शन मेड देगी क्या मुझे? मेरे जीवन में प्रेजेंटेशन बनाना इंपॉर्टेंट है या नहाना इंपॉर्टेंट है, इसके डिसीजंस कौन लेगा, मैं या मेरी मेड? कौन लेगा बुद्धू जी? आप लेंगे। लेकिन वो तो सवाल उठ रहा है कि मेड को कपड़ा धोना है
उसका टाइम लैप्स कर रहा है, इसलिए आप नहा लीजिए। हाँ, तो एक म्यूचुअल डिसीजन। यस सर, यस सर, आपका एक जो म्यूचुअल पूरा डिसीजन मीटिंग में आना शेड्यूल, होगा। सर जो हाँ। आपका पूरा मीटिंग शेड्यूल है 10 बजे से 10:40 तक, आप हर मिनट क्या करने वाले हैं? इफ यू आर नॉट नोटेड इट डाउन, यू कैन नॉट गो विथ योर प्लान। और मीटिंग कभी 10:40 में खत्म नहीं होगा, और मीटिंग में दूसरी बातें होती रहेंगी। यस सर, यस सर। मीटिंग में चाय पर डिस्कस होता रहेगा। आपको पता है कि इस मीटिंग में 12 लोगों को बुलाया गया है, राइट? क्या आपने अपने स्टाफ को, अपने प्यून को बुलाकर पूछा कि ये 12 लोग मीटिंग में आ रहे हैं, इसको कौन सा चाय में चीनी चाहिए, किसको नहीं चाहिए, तुमको पता है सब? जी सर। उसको पता था क्या? नहीं। तो उसको पहले पता होना चाहिए कौन क्या लेने वाला है। या अगर नहीं पता है तो क्या वो ऐसा चाय लेकर आया, 10 कप चाय वो चीनी का लाता, 5 कप चाय बिना चीनी का लाता, या सारा चाय बिना चीनी का लाता और चीनी एक अलग से लेकर आता कुछ चम्मच के साथ? भाई आपने अपने प्यून के साथ डिस्कस किया क्या कि उसको क्या करना है, व्हाट इज सपोज टू डू, एंड व्हेन ही विल इंटर इन द रूम विद द टी, राइट एट 10 o'clock or 10:30 or right at 10:40 after the meeting? अगर ये सीरियस मीटिंग है और जिसमें ये चाय कॉफी आती रहेगी, तो लोग क्या करेंगे? चाय में चीनी की बात करेंगे कि बुद्धदेव जी को सुनेंगे? प्रिपरेशन So the coordinator of the meeting who has called the meeting had an idea that what is going to be entire every minute in the meeting hour. अब आपने 12 लोगों को बुलाया है, ये 12 लोग बैठेंगे कहां? क्या मीटिंग के पहले चेयर्स आ गई थी सबके लिए कि 12 लोग आ गए तो दिखा 10 चेयर है, 2 चेयर और मंगवाया? व्हाट यू डिड? सो अगर आपने नहीं सर, वो रहता है सर, हाँ आपने सर, वो अपने रहता आप को प्रॉपरली प्लान नहीं किया है, तो ये मीटिंग कोई और टेक ओवर कर लेगा। ओके सर। पूरे मीटिंग के दौरान नॉन सीरियसनेस आ जाएगा। ये मैसेज आपको ही देना है, चूंकि आपने मीटिंग कॉल किया है, कि यू मीन बिजनेस आउट ऑफ दिस मीटिंग, इट इज नॉट अ गेट टुगेदर। देयर इज डिफरेंस बिटवीन गेट टुगेदर एंड अ मीटिंग। नॉट सर। If you do not understand that get together and meeting is two different things, ये सारे समस्याएं आएंगी। यस सर। अब देखो, आपकी एक टीम मीटिंग है, आपने अपनी टीम मीटिंग के लिए पूरा मिनट टू मिनट एजेंडा बनाया क्या, और ये एजेंडा शेयर किया क्या? एक एग्जांपल, मनोज सर, मनोज कुमार जी। यस सर। सर, एक मीटिंग का एजेंडा बना हुआ है, राइट? हाँ जी, ये और 10 बजे मीटिंग शुरू हुई है, हाँ जी, और उस एजेंडा में लिखा है कि मनोज कुमार जी बोलेंगे 10:18 से 10:20 तक। ओके सर। तो आप क्या करेंगे सर? 10 बजे मीटिंग शुरू हुआ, आप वहीं पर बोलना शुरू कर देंगे कि 10:18 तक इंतजार करेंगे? सर मीटिंग 10 बजे शुरू तो हो गया, परंतु सब मीटिंग का पूरा कोंडम, पूरे सदस्य आ जाएंगे, उसके बाद ही काम शुरू होगा। नहीं नहीं सर, पूरे मीटिंग में लिखा है, मीटिंग मान लो डायरेक्टर के यहाँ है, अच्छा जी, और उस पर लिखा है कि मनोज कुमार जी 10:18 से 10:20 तक बोलेंगे। सर फिर मैं अपने टाइम पर ही बोलूंगा जी। आपको पता है ना कि हमको 10:18 में मिलेगा बोलने को, हाँ जी, राइट? आपको पता 2 मिनट मिल रहा है मुझको बोलने का, हाँ जी, तो आप अपनी तैयारी करके मन में रखेंगे, बिल्कुल जी। और जब 10:18 होगा तब बोलेंगे।
जब मेरी बारी आएगी तो 18 को। इसका मतलब बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे मीटिंग को आप। नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मीटिंग अगर के लिए- आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको कब बोलना है, तब आप क्या करेंगे सर? सर जब टॉपिक के ऊपर भी बात होगी तो मैं विषय पे रख पाऊंगा। जब आपको लगेगा कि हाँ बोलना चाहिए, आप बोल देंगे। हाँ जी, हो सकता है पूरी मीटिंग में 5 बार बोल दें आप, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि आपको एक ही बार बोलना है। एक ही बार बोलना। अब मीटिंग में किसी को पता नहीं किसको कब बोलना है, सब लोग 5-5 बार बोलेंगे, तो मीटिंग 10:40 में खत्म होगा क्या? नहीं हो पाएगा सर, इसमें टाइम लगेगा। तो अगर मीटिंग बुलाने वाले ने एजेंडा नहीं सेट किया, मनोज कुमार जी को बताया नहीं आपको क्या करना है, तो मनोज कुमार जी को कैसे पता चलेगा अपने आप की होने वाला क्या है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आप यू आर राइट सर। पूरा एजेंडा आपके पास हो, टॉपिक दे रखा हो क्या आपको, इस टॉपिक पे पूरा फ्लो आपके पास हो, होना क्या है, किन टॉपिक्स पर बात होनी है, तभी आप अपनी तैयारी करेंगे ना। सर एक्सक्यूज मी सर, या मैम, कई बार एजेंडा देते नहीं और मीटिंग में चले जाए, कैसे जाए? मैडम अगर लोग मीटिंग को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे होते, हम ये सेशन ही नहीं करते। बिल्कुल सर। ये सेशन इसलिए कर रहे हैं कि लोग गलती करते हैं, आप तो कम से कम अब गलतियां ना करें। नो सर, मैं नहीं करूँगा। अब देखो वेरियस टाइप ऑफ मीटिंग है। एक मीटिंग होती है जिसमें अनाउंसमेंट होता है, केवल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बता देता ये करना है, यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी आंसर, एनी फीडबैक। ठीक है मनोज जी? ठीक है सर। एक मीटिंग होता है जिसमें आपसे ओपिनियन लेते हैं, आपके यहाँ क्या हो रहा है, आप कैसे करेंगे, इसको कैसे करना चाहिए। ठीक है सर? बिल्कुल जी। एक मीटिंग होता है जिसमें आप अपनी बातें रख देते हैं और लोगों को कहते हैं इस पर सोचो और बाद में जवाब देना। बिल्कुल जी। एक मीटिंग होता है जिसमें आपसे हम रिपोर्ट मांगते हैं। बिल्कुल जी। मैं पूरी बातें कर दिया, मान लो अटेंडेंस रिपोर्ट ले रहे हैं, 10 ITI के प्रिंसिपल्स को मैंने बुलाया है और आपसे पूछा आपके यहाँ अटेंडेंस का क्या कंडीशन है, तो आप रिपोर्ट लेकर आए हैं और अपना अटेंडेंस कंडीशन बताएंगे। दूसरा वाला फिर दूसरा प्रिंसिपल बताए खड़ा होगा और वो अपना बताएगा। तो ये अगले अलग तरीके का रिपोर्ट है, अलग तरीके की मीटिंग है। तो क्या आपको पता है आप जो मीटिंग लेने वाले हैं वो किस तरह की मीटिंग आपने लिखा? सर बीइंग अ प्रिंसिपल, आप जब मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑर्गेनाइज करने के पहले अपने आप को कितना समय देते हैं मीटिंग बनाने के लिए? सर मीटिंग लेने से पहले तो पूरा प्रिपेयर होना पड़ता है सर, टॉपिक के लिए सारी चीजें लेनी पड़ती हैं, तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद ही तो मीटिंग लेंगे। अगर मैं खुद प्रिपेयर नहीं। मोस्ट ऑफ द तैयारियां दिमाग में होती हैं सर, या फाइल्स में होती हैं। हाँ जी होती हैं, परंतु कागज पर नहीं होती हैं सर। कागज पर मेरा नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि अगर चीजें कागज पर लिखेंगे आप ना, तो आप ऊपर पलट के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अरे डायरेक्टर है 1 मिनट थोड़ी बोलेगा, तो 5 मिनट से कम नहीं बोलेगा, तो इसको 5 मिनट देना पड़ेगा। अरे इसमें तो मोहन जी छूट गए, उनको उनका नाम ही नहीं लिखा, वो छूट गए, तो उनको भी 1 मिनट देना पड़ेगा बोलने के लिए। ठीक है जी। ये जो सब बोलेंगे ये लिखेगा कौन? भाई सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो कोई होगा ना जो नोट डाउन करेगा। हाँ जी, वो तो तो किसी को तो असाइन ही नहीं किया मीटिंग में जो नोट डाउन करेगा चीजों को। किसका क्या आइडिया आ रहा था? या आपने किसी को डायरेक्शन दिया कि अच्छा ठीक है ये बात, इसको आप रिपोर्ट के फॉर्म में इस तरह भर के भेजिएगा, या अच्छा ठीक है इसको हम लोग 16 तारीख को डिस्कस करेंगे। somebody should be there to note down all things। क्या आपने पूरे एजेंडा में ये सब कहीं लिखा कौन करेगा क्या, कौन सा काम? सर मनोज सर, मेरा ये सिंपल कहना है कि जो आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो मिनट टू मिनट फ्लो मीटिंग का हाँ जी आपके पास लिखा होना चाहिए। बिल्कुल सर। और 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है मीटिंग में। पहली, समय पर शुरू हो,
जिस ऑब्जेक्टिव से मीटिंग हो वही हो उसमें, और समय पर खत्म हो। ठीक है जी। मीटिंग में जो बातें डिस्कस की गई, जो बातें सामने आई, वो नोट डाउन हो और उस पर फॉलो अप हो। ठीक है सर। केवल मीटिंग होके न रह जाए। बिल्कुल। मीटिंग का फायदा जब भी डिफरेंट तो टाइप ऑफ मीटिंग्स है, राइट? बिल्कुल सर, राइट। ओके। अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए अलग तरह की मीटिंग है। मान लो मैं स्टेज से अनाउंसमेंट कर रहा हूं तो ऐसी वाली मीटिंग होगी, और मैं डिस्कस कर रहा हूं तो ऐसी वाली मीटिंग होगी। चेयर अरेंजमेंट्स डिफरेंट होंगे। अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो चेयर अरेंजमेंट्स डिफरेंट होंगे। बिल्कुल जी। अब देखो, स्टाफ मीटिंग क्यों कर रहे हैं? होता क्या है, एक मीटिंग करते करते ना दूसरी चीजें निकल आती हैं और वो भी डिस्कस होने लगता है। मनोज सर, हाँ जी, थोड़ी देर में। आप अपने इंस्टीट्यूशन में स्टाफ मीटिंग कब कब करते हैं सर? सर जब किसी कोई ऊपर से आदेश आते हैं कि भाई इस टॉपिक के ऊपर इस तरह से कार्य कराना है, ठीक है, वो एक अलग हो गया। उसके अलावा कोई अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं चल रही है, कोई भी विषय है जिसके ऊपर स्टाफ की राय लेनी हो या स्टाफ से काम कराना है, उसके अलावा या कोई कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपसी सहमति से कार्य हो जाए। देखिए सर, मीटिंग 3 तरह की होनी चाहिए। एक मीटिंग है ऑपरेशनल, दूसरी मीटिंग है रिपोर्टिंग, और तीसरी मीटिंग है डेवलपमेंटल। प्रिंसिपल्स का प्रॉब्लम यह है, रिपोर्टिंग की मीटिंग्स होती है, इंफॉर्मेशन की मीटिंग होती है, डेवलपमेंटल मीटिंग होती ही नहीं है। प्रभात जी, जी सर। कोई ऐसी मीटिंग अभी हाल में हुई आपके साथ जिसमें आपकी एज ए टीचर इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी को कैसे ठीक करें, कैसे उस पर काम करें, इस पर कोई मीटिंग हुई हो? हाँ सर, हमारे सर हैं, इस तरह के मीटिंग करते हैं। सर मैं वापस दे रहा हूं प्रभात जी, जी सर। मैं इसका बहुत सहमत हूं कि आप अपने यहां टीचर इवैल्यूएशन करें। टीचर को एक 10 पैरामीटर का एक्सेल शीट दें और उसको कहें हर क्लास के बाद उस एक्सेल शीट पर खुद को नंबर दें। महीने के अंत में आप उस टीचर से पूछें कि सर इस 10 पैरामीटर में आपको सबसे ज्यादा नंबर किन 3 में आया? जो 3 पैरामीटर्स वो बताएगा, इसमें सबसे ज्यादा नंबर आया, आप पाओगे 1-2 ऐसा होगा जो सबका कॉमन होगा, और 1-2 पैरामीटर ऐसा होगा जो सबका अलग अलग होगा। जी सर। तो जो सबका अलग अलग है ना, अगर प्रभात जी एक्स में सबसे अच्छा इनको नंबर आया है, तो मैं हर सैटरडे को 1 घंटे का, 45 मिनट का, आधे घंटे का एक सेशन करूंगा, जिसमें प्रभात जी हम प्रिंसिपल और सारे फैकल्टीज को उस एक्स फैक्टर के ऊपर में अपना ज्ञान देंगे। अगले सैटरडे को मनोज सर वाई फैक्टर पर, जो इनका सबसे अच्छा था, उस पर ये हमें सिखाएंगे कैसे किया था। ठीक है सर। हर एक टीचर में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है मनोज सर। होती है सर। उस क्वालिटी के टीचर को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो अपनी क्वालिटी को बाकी टीचर्स को सिखा सके। ठीक है सर। 3 महीने में सर आपके सभी टीचर
एट पार हो जाएंगे। जिसकी जिसकी जो कमियां होगी ना वो आपस में सीख सिखा के ठीक कर लेगा। सर दैट्स ए प्रॉब्लम सर, टीचर आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार का शेयर तो नहीं करते जी। नहीं नहीं सर, आप जैसे उसको बताएंगे ना कि सर आपका क्लास मैनेजमेंट सबसे अच्छा है, तो इस शनिवार को क्लास मैनेजमेंट टेक्निक्स पर आप हम लोगों को आधा घंटा ज्ञान देंगे कि कैसे आप क्लास मैनेज करते हैं। आप और आपके सारे टीचर, सारे नॉन टीचिंग स्टाफ बैठे हैं और वो टीचर पढ़ाएंगे कि क्लास मैनेजमेंट वो कैसे करते हैं, और हम सब लोग उनकी बातों को सुनेंगे। कोई काटेगा नहीं, कोई काउंटर नहीं करेगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। अगले सैटरडे को दूसरा टीचर है जो ये कहता है मेरा स्टूडेंट इंटरैक्शन सबसे अच्छा है। वो बताएगा कि वो कैसे स्टूडेंट इंटरैक्शन करता है। हो सकता है हम सहमत ना हो उसकी बात से, हो सकता है हम उसकी बात से काटना चाहते हो, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम कोई काटेंगे नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, चुपचाप उसको आधे घंटे बर्दाश्त करेंगे, सुनेंगे। जब आधे घंटे सुनेंगे तो उसमें से 10 बात वो बोलेगा, 8 मुझको नहीं पसंद आएगा सर, क्योंकि मैं भी टीचर हूं, मुझे पसंद नहीं आएगा, ये गलत कर रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए। लेकिन 2 ऐसा भी लगेगा जो मैं नहीं करता तो वो कर रहा है, तो 2 बात मेरे तक पहुंच जाएगी और बिना किसी को बोले मैं चुपचाप वो करने लगूंगा सर, ये वाला तो मैं नहीं करता, करना चाहिए। यहां तक ठीक है सर? बिल्कुल सर, ओके। अब देखो मीटिंग के पर्पस, मीटिंग के पहले का, मीटिंग के ड्यूरेशन का, मीटिंग के एंड का, मीटिंग के बाद का, ये कई सारी चीजें हैं जो आप करते हैं, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा। लेकिन आपके पास मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के पहले आपके पास ये चीजें कागज पर लिखी होनी चाहिए कि मीटिंग के पहले आप क्या करेंगे, मीटिंग के दौरान आप क्या करेंगे, मीटिंग के बाद क्या करेंगे, और आफ्टर मीटिंग क्या फॉलो अप करेंगे। ठीक है सर। सर मीटिंग ऑर्गेनाइज करना मेरे लिए जीवन का सबसे डिफिकल्ट काम है सर। हेड ऑफ द मीटिंग होने की वजह से मुझे इतना मेहनत करना पड़ता है मीटिंग के लिए, मैं जानता हूं। ठीक है, आगे चलें सर? ठीक है, हाँ जी सर, आगे चलिए। अब देखो कई मीटिंग है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की मीटिंग है, इंफॉर्मेशन की मीटिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की मीटिंग है, ऐसे वेरियस टाइप ऑफ मीटिंग है। बीइंग ए प्रिंसिपल आपके पास लिखा होना चाहिए कि पीछे के महीने में कितनी मीटिंग आपने बुलाई और क्या सारी मीटिंग केवल और केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाई थी। ठीक है मनोज सर, आप मुझको अपने घर चाय के लिए, अपने घर इनवाइट करते हैं, आइए बल्लभ सर खाना खिलाएंगे। सर, चाय के लिए इनवाइट कर, चाय के नहीं, लिए चलो खाना खाने के लिए बुलाया, राइट? ठीक मैं है। आपके घर खाना खाने पहुंचा, आपने जो खाना में मुझे खाना खिलाया, जो मेनू था, आपने कहा बल्लभ सर कल फिर आइएगा, बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा खाना खिलाया। मैं कल फिर आपके घर आया और आपने फिर वही वाला खाना मुझको खिलाया जो आज खिलाया था। ठीक बात है। चौथे दिन आपने मुझे फिर बुलाया और फिर वही वाला खाना खिलाया जो आज खिलाया था। 5वें दिन मुझको फिर कहा आइएगा सर। नहीं आएंगे आप। अब मेरे आने की संभावनाएं कैसी हैं सर? बहुत कम है, नहीं आएंगे मुझे आप। पता है कि फिर आप वही खिलाओगे, बिल्कुल मुझे मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। सर आप पूरा मेहनत कर रहे हैं, आपकी वाइफ, आपके परिवार के लोग मेरे लिए खाना बनाने का पूरा प्रयास, मेहनत कर रहे हैं, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, समय जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है। मैं खुश होकर आपका डिनर नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूं। दिस इज सिमिलर सिचुएशन विथ मीटिंग। इफ ऑल द मीटिंग्स आर सिमिलर on the same nature, the participant lose interest in attending your meeting. They attend your meeting
because they are supposed to attend. They are not attending because they wanted to attend. यहाँ तक ठीक है सर? ठीक है बिल्कुल सर। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करें और सवाल पूछें। मैं एक अलग से कुछ सवाल जानना चाहता हूं सर। जरूर बोलिए सर। सर ये जो हमारे मैनेजमेंट कोर्स चल रहा है सर, इसमें क्या स्टोर से संबंधित भी कोई ऐसा मैनेजमेंट का हम लोग को किससे संबंधित? स्टोर में, जैसे कि हमारे सरकारी ITI में जो स्टोर होते हैं। जी सर ऐसा है कि हम लोग ये जो फोकस्ड है ना हमारा, ये पूरा MDP जो फोकस्ड है, ये फोकस्ड है एक प्रिंसिपल, HOD या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस तरीके से अपने स्कूल के डेवलपमेंटल पर काम करेगा, अपने फैकल्टी एम्प्लॉइज पर काम करेगा। जी सर। स्टोर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इसके इंटीग्रल पार्ट नहीं थे। आपने अच्छा याद दिलाया है। जी सर। आगे के ऐसे प्रोग्राम में स्टोर्स को भी 10 मिनट समय मिलना चाहिए। यस सर। तो मैं सर पर्सनली मैं स्टोर इंचार्ज हूँ सर। नहीं, आपने अच्छा सवाल उठाया है। मैं आगे के किसी प्रोग्राम्स में मैं इसको भी 10 मिनट समय देने की चेष्टा करूंगा। अच्छा, धन्यवाद, आपने सवाल उठाया। तो राजेश सर, टूल रूम से आप हैं? मेरा रिक्वेस्ट है सबों से कि एक बार अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ ले सकें। राजेश सर आप हैं? राजेश सर आप हैं? यस सर। राजेश सर, सबों का ग्रुप फोटोग्राफ ले लें जी। और श्रेया मैम, आपसे भी रिक्वेस्ट है, कुछ ग्रुप फोटो अभी ले लें और मुझे सेंड कर दीजिएगा। ये विश्वास सर, बुद्धदेव जी। हाँ सर, आई एम कमिंग बैक सर, प्लीज वेट सर, प्लीज। सर कैमरा ऑन कर लें। रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी, आप अपना कैमरा ऑन कर लें और देख लें आपके पूरे फोटोग्राफ्स स्क्रीन पर आ रहे हैं या नहीं। मैं देख रहा हूं काफी लोग हैं जिनका कटा हुआ चेहरा आ रहा है। थोड़ा सा अपना स्क्रीन देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। राजेश सर फोटो ले लें, स्नेहा मैडम आप भी ले लें। बुद्धदेव जी, आपका कैमरा अभी तक ऑफ है। Thank you everyone. Okay. We will meet tomorrow at 9:45. सर मेरा जवाब नहीं मिला सर। मैं चाहता हूं, आपने बताया कि सर आगे रखेंगे स्टोर के लिए, क्या मुझे 10 मिनट के लिए कब समय मिल सकता है इसके लिए? क्या इस मीटिंग में आज हम लोग समय से आगे हो गए हैं। जी सर। कल हम लोग सबसे पहले सुबह आपके साथ ही शुरू कर लेंगे। ठीक है सर। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। बुद्धदेव जी, आप भी कुछ फोटोग्राफ ले लें ताकि आप मुझे सेंड कर पाए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।